آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، 24 گھنٹوں کے لیے گیس نہیں ملے گی۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے گیس آج بند رہے گی۔ اس حوالے سے ہمیں رپورٹ کریں گے محمد حماد۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور کڑا امتحان، 5 بجے سے 24 گھنٹوں کے لیے گیس بند رہے گی۔ ایس ایس جی سی کے مطابق اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، ایف بی ایریا، نارتھ ناظم آباد، بلدیہ ٹاؤن اور ماڑی پور سمیت کئی علاقوں میں گیس بند رہے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ہوٹل سے ناشتہ اور کھانا خریدنا ممکن نہیں۔ یہی بہت پریشانی رہے گی گیس کی وجہ سے، نہ کھانا بن سکتا ہے، نہ مطلب یہ کہ ناشتہ بن سکتا ہے، اور باہر کا کھانا اور اپنا ناشتہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا غریب آدمی، کہاں سے کرے گا؟ مطلب غریب آدمی بنا ہی نہیں سکتے ہم کھانا، اور گیس تو بہت ضروری ہے، مطلب یہ کہ اپنا عوام کے لیے۔ اب لکڑیاں ملتی نہیں ہیں، لکڑیاں جلا نہیں سکتے ہم، چولہے بنا نہیں سکتے ہیں لکڑیوں کے پکائے ہم، لہٰذا یہ بڑی پریشانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو شہریوں نے ایل پی جی مہنگی ہونے کی وجہ سے گیس سلنڈر بھی دسترس سے باہر ہونے کا شکوہ کیا۔ عوام پہلے ہی پریشان ہے اور اس سے مزید پریشانی بڑھے گی لوگوں کی رینج میں نہیں ہے، اور گیس کے ریٹ بھی بہت بڑھ گئے ہیں جو سوئی گیس نے بڑھا دیے ہیں۔ اس پہ بھی ان کو چاہیے کہ اس کے جو غریب عوام ہے اس کو ریلیف دیا جائے۔ باقی ایل پی جی گیس بھی بہت مہنگی ہے، اور پھر اس سے سلنڈر پھٹنے کے، گھر میں حادثے ہونے کے بہت معاملات ہوتے ہیں۔ گیس کی بندش 24 انچ قطر 31 کلومیٹر ٹرانسمیشن پائپ لائن کو جوڑنے کے باعث کی جائے گی۔ ایس ایس جی سی نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ عارضی بندش کے دوران گیس کا بندوبست کر لیں تاکہ کسی بھی زحمت سے بچا جا سکے۔ کیمرامین شازیب رضا کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ کا تاخیر کا شکار اور ٹرانزٹ پروازوں کے مسافروں کے لیے اہم اقدام۔ کراچی ایئرپورٹ پر تاخیر کا شکار ہونے والی پروازوں کے مسافروں کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ کراچی ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ پروازوں کے مسافروں کو بھی ناشتہ اور کھانا دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کا تاخیر کا شکار اور ٹرانزٹ پروازوں کے مسافروں کے لیے اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر تاخیر کا شکار ہونے والی پروازوں کے مسافروں کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ کراچی ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ پروازوں کے مسافروں کو بھی ناشتہ اور کھانا دیا جائے گا۔ پی آئی اے کا تاخیر کا شکار اور ٹرانزٹ پروازوں کے مسافروں کے لیے یہ اہم اقدام سامنے آیا ہے، جس میں کراچی ایئرپورٹ پر تاخیر کا شکار ہونے والی پروازوں کے مسافروں کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ کراچی ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ پروازوں کے مسافروں کو بھی ناشتہ اور کھانا دیا جائے گا۔ بات کرنے کے لیے شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پی آئی اے نے تاخیر کا شکار اور ٹرانزٹ پروازوں کے مسافروں کے لیے اہم اقدام جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر تاخیر کا شکار ہونے والی پروازوں کے مسافروں کو کھانا اب سے جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ پروازوں کے مسافروں کو بھی ناشتہ اور کھانا جو ہے وہ دیا جائے گا، جبکہ پی آئی اے نے فوڈ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے بھی اس معاملے پر درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ ٹینڈر کے لیے درخواستیں جو ہے 8 اگست تک مختلف کمپنیاں جمع کرا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے پی آئی اے کا اہم اقدام جو ہے سامنے آیا ہے، جس کے تحت اب سے تاخیر کا شکار اور ٹرانزٹ پروازوں کو جو ہے کھانا فراہم کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ شعیب مختار۔ ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام یوتھ کنونشن کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کل سیاسی روایات سے ہٹ کر ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کی نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ فاروق ستار بولے، مایوسی کے تاریک اندھیروں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ مایوسی کا شکار نوجوانوں کے لیے امید کی کرن، ایم کیو ایم پاکستان کا یوتھ کنونشن۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں اراکین صوبائی و قومی اسمبلی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال بولے، کل ہم تاریخی یوتھ کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نوجوانوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہتے ہیں۔ روایات سے ہٹ کر، سیاسی روایات سے ہٹ کر کل ہم یہاں پاکستان کے نوجوانوں کو، جو کہ اس وقت مایوسی کے عالم میں ہیں، مایوسی کے دلدل میں ہیں، اور کل ہم نے ایک ریسرچ بیسڈ یوتھ کنونشن کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر پہلے منٹ سے لے کر آخری منٹ تک، آخری سیکنڈ تک، ہر لمحے ہر سیکنڈ جو ہے وہ جو کل یہ گزرے گا اس پروگرام میں، وہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو کچھ دے رہے ہوں گے۔
यूथ कन्वेंशन के बाद पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने का दावा करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि नौजवान अपने पैरों पर खड़े होंगे तो पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा। मायूसी से लोगों को हम निकाल कर उम्मीद की तरफ ला रहे हैं, डिस्पेयर डिस्पॉन्डेंसी को खुदा हाफिज क्या कह के होप की तरफ ला रहे हैं, और दूसरी जानिब गौर करें जो उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, खुद को रोजगार फराहम करने की जो सहूलत दी जा रही है। एमक्यूएम के रहनुमाओं का कहना था कि मुआशी बदहाली में ये कन्वेंशन उम्मीद का चिराग साबित होगा। उम्मीद है कल नौजवान इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। कैमरामैन जान शेर बलोच के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध का महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट इंतजामी बहरान का शिकार हो गया। साबिक चेयरमैन फरहद अली जुनेजो को हटाने के बाद नए तैनात सईद जुल्फिकार अली शाह की भी अदम दिलचस्पी। 10 रोज़ा छुट्टियों पर जाने वाले चेयरमैन वापस ना लौटे। हुकूमत ने नए चेयरमैन की तलाश शुरू कर दी। तफसीलात आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट में। इंक्वायरी कमीशन एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट भी इंतजामी बहरान की नजर हो गया। चेयरमैन सैयद जुल्फिकार अली शाह इराक जियारत के लिए 10 रोज के लिए रुखसत हो गए। छुट्टियां खत्म होने के बाद एक हफ्ता हो गया लेकिन चेयरमैन वापस न लौटे। हुकूमत सिंध ने साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहद अली जुनेजो को ओहदे से फारिग करने के बाद 20 ग्रेड के अफसर सईद जुल्फिकार अली शाह को नया चेयरमैन तैनात किया था। नए चेयरमैन ने भी ओहदा तो संभाल लिया लेकिन अदम दिलचस्पी जाहिर की। चंद दिनों के बाद वो 11 जुलाई को 10 रोजा छुट्टियों पर इराक चले गए। छुट्टियां खत्म होने का एक हफ्ता बीत गया लेकिन चेयरमैन ने ना मजीद छुट्टियां हासिल की और ना ही वापस लौटे। कायम मकाम चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बदर जमील मंदेरों ने ओहदा तो संभाल लिया लेकिन जिम्मेदारियां ना निभाई। सिंध हुकूमत ने एक हफ्ते से गायब सईद जुल्फिकार अली शाह को अगले हफ्ते ओहदे से फारिग करने पर गौर शुरू कर दिया। जबकि नए चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत ने तीसरी बार 20 ग्रेड के पुलिस अफसर उस्मान गनी सदीकी को लगाने की सिफारिश कर दी। उस्मान गनी सदीकी इस वक्त डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स तैनात हैं। ताबनाक मुस्तकबिल की जानिब एक कदम। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की 11वीं सालाना तकसीम असनाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कामयाब तलबा व तालिबात में असनाद तकसीम की गई। तफसीलात जानेंगे फारान खान की रिपोर्ट में। मेहनत का फल मिल गया। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के 450 तलबा डिग्री होल्डर बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के 11वें कॉन्वोकेशन का एक्सपो सेंटर में एहतमाम। इस मौके पर 450 कामयाब तलबा को असनाद से नवाजा गया। बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर 37 तलबा को गोल्ड मेडल्स, 32 को सिल्वर और 21 को ब्राउन्ज मेडल्स दिए गए। चेयरमैन HEC प्रोफेसर तारिक रफी ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये तकरीब तकसीम असनाद सफर का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए सफर का आगाज है। As you enter the professional realm, equipped with the skill and knowledge that you have gained today at this Muhammad Ali Jinnah University, remember that education is a lifelong journey. It does not end here today. Even those who have done their PhD should not forget that there is no end to education. तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी बोले कि IMF ने हमें जकड़ रखा है। मुझे मालूम है आज डिग्री लेने वाले तलबा भी परेशान हैं, लेकिन हमें अज़म करना है कि हमें इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अगर हम माशी बहरान से निकलना चाहते हैं तो कहीं IMF ने हमें जकड़ा हुआ है, कहीं हमारे अपने अंदरूनी मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि उसका सुधार इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है, लेकिन वो आसानी आप लोग पैदा कर सकते हैं। कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तलबात ने भी खुशी का इजहार किया और अपनी कामयाबी को अपने वालिदैन और असातिज़ा के नाम मंसूब किया। कैमरामैन हारिस कैमरा, फरहान खान, सिटी 21। स्टील मिल बहाल न होने की वफाकी हुकूमत के दावों की नफी। रूस ने स्टील मिल की बहाली के लिए मदद की पेशकश कर दी। रूसी काउंसिल जनरल कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत इस पर संजीदगी इख्तियार करे तो रूसी हुकूमत भी मुआवनत पर गौर करेगी। मजीद हम जानेंगे मीर कीरियो की रिपोर्ट में। स्टील मिल बहाल नहीं हो सकती, स्क्रैप में बिकेगी। स्टील मिल का कोई खरीदार नहीं। सब हुकूमती दावे गलत साबित हो गए। रूस ने स्टील मिल की बहाली की पेशकश कर दी। कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की पाक रूस तल्कात पर तकरीब हुई जिसमें रूसी कौंसल जनरल आंद्रे फेडरोव शरीक हुए और पाक रूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। रूसी कौंसल जनरल का कहना था कि रूस ने हमेशा जनूबी एशिया में अमन को फरोग दिया है।
पाकिस्तान स्टील मिल का क़याम दोनों ममालिक के तावन की मिसाल है। रूसी कौंसल जनरल ने पेशकश की कि स्टील मिल की बहाली के लिए मदद करने को तैयार हैं। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से संजीदगी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसके साथ रूस ने डिप्लोमेटिक वीज़ा पर तावन किया। गुज़श्ता 3 बरसों में पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ सफारती तल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। Pakistan and Russia are friends, and we are working on further progress in our relations, in our cooperation. We have a mission from our leaders to strengthen the ties, and trust me, every day we are working how to reach more progress in these relations. Pakistan is a very close and important partner of Russia, so we think that the relations with Pakistan will allow us to provide more stability and peace in this region. रूसी कौंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान और रूस के सरबराहों में मुतअद्दिद शोबों पर बातचीत हुई थी। हमारे सरबराहान पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी में ताउन के लिए भी पेशकश कर रहे हैं। कैमरामैन शेरिक के साथ मीर कीरियो, कराची। सिंध में सैलाब के दौरान फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात की निशानदही हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। करप्ट अफसरान ने सैलाब मुतासरीन को नहीं बख्शा। सैलाब मुतासरीन के फंड्स में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हकायक से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट में फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद के अखराजात की भी निशानदही की गई है। PDMA की ऑडिट रिपोर्ट में बड़े इतराजात। रिपोर्ट में कहा गया है कि GST छूट के बावजूद सप्लायर को 42 करोड़ 96 लाख रुपए की अदायगी की गई। डिप्टी कमिश्नर को जारी 30 करोड़ रुपए फंड्स के अखराजात की तफसील फराहम नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर मोटियारी पर ऑडिट में 4 करोड़ 47 लाख रुपए फंड्स की मुबैना खुर्द-बुर्द का शुबा भी जाहिर किया गया। डिप्टी कमिश्नर को क्रॉस चेक के बजाय खिलाफ कानून कैश में 7 करोड़ 71 लाख रुपए फराहम किए गए। सांगड़, जामशोरो, थरपारकर, मोटियारी, नौशेरो फिरोज, खैरपुर और मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर भी फंड्स की खुर्द-बुर्द में शामिल। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन, टेंट, मच्छरदानियों और दीगर एशिया की मालियत ज्यादा जाहिर की गई। राशन की फी बैग कीमत 9,000 रुपए फी बैग दी गई। 2 माह बाद तकरीबन इतने ही आइटम के राशन बैग की कीमत 3,350 रुपए था 3600 रुपए जाहिर की गई। कॉन्ट्रैक्ट में राशन की तरसील शामिल होने के बावजूद सप्लाई का अलग से 3 करोड़ रुपए से जायद का ठेका दिया गया। PDMA के गोदामों में इमदादी सामान के स्टॉक्स और आमदोरफ्त का डेटा मुरतब नहीं किया गया। मुतासरा इलाकों से पानी निकालने वाले ट्रकों की तादाद और फ्यूल में भी गलत मालूमात फराहमी का भी इंकशाफ। एक ही ट्रक को एक वक्त में कई इलाकों में पानी निकालते हुए जाहिर किया गया। बगैर वक्त और काम की तफसील के गाड़ियों को फ्यूल दिया गया। खराब गाड़ियों को भी काम करते हुए जाहिर किया गया। मुतासरीन में इमदादी एशिया की तरसील में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां भी सामने आई हैं। साथ ही जिला में 28,871 मुतासरीन को एक ही किस्म की इमदादी सामान की फराहमी मुतअद्दिद मरतबा जाहिर की गई। इमदाद की मिकदार और वसूल करने वालों की तादाद में भी मुताबिकत नहीं। कई अजला में इमदाद वसूल करने वालों की सिर्फ तादाद का अंदराज, बाकी कोई तफसील दस्तयाब नहीं। आम का मौसम हो और आम पार्टी ना हो, ये कैसे हो सकता है? कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से सहाफ़ियों के एहसास में मैंगो पार्टी का अहतमाम। दस्तूर के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक। सदर हामिदुर रहमान कहते हैं कि सहाफ़ी की लाइफ बड़ी मसरूफ़ होती है। ऐसे में हमने मिल बैठने का एक मौका निकाला जो हमारी बरसों पुरानी रिवायत है। तफसीलात खुर्शीद रहमानी के रिपोर्ट में देखिए। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की रिवायती आम पार्टी मसरूफ जिंदगी में लुत्फ अंदोज होने के चंद लम्हे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से सहाफियों के एजाज में मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया। मैंगो पार्टी में सदर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर हामिदुर रहमान ने कहा कि ये मिलकर बैठने का अच्छा मौका है और आज हमने अपने मुख्तलिफ इदारों में यूनिट चीफ्स का तकर्रुर किया है। ये बाहर निकलते हैं तो पूरा पूरा दिन काम करते हैं और इनको फैमिलीज के साथ घुलने मिलने का टाइम नहीं मिलता, हत्ता कि दोस्तों के साथ भी घुलने मिलने का टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह की तकरीबात एक जगह गैदर होकर एक दूसरे की बात सुनने का मौका मिलता है, कुछ अपनी सुनाने का मौका मिलता है। तो इसलिए इस तकरीब का एहतमाम किया जाए ताकि दोस्त एक दूसरे के साथ कुछ हाल अहवाल बयान कर सकें। साबिक सेक्रेटरी प्रेस क्लब एच.ए. खानजादा ने कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की इस रिवायत को सराहा और कहा कि हम सहाफियों के हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेंगे। हाकिम वक्त पर हम जोर डालते हैं कि वो मालिकान अखबारात और मीडिया इदारों के मालिकान को हाकिम वक्त मजबूर करे कि वो हमारे मामलात को, हमारे मुआशी मामलात को बेहतर अंदाज में चलाएं। भाई देखिए, मीडिया वर्कर, अखबारी मालिक और हुकूमत, ये तीन कोनों का जो संगम है, ये जब तक एक सतह पर नहीं आएंगे,
अखबारी कारकुनान के मसाइल ठीक नहीं होंगे। हुकूमत वक्त से कहते हैं कि वो मीडिया मालिकान को सहाफ़ियों के हुकूक देने का पाबंद करें। मैंगो पार्टी में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक थी और सब ने खूब आम पार्टी को एंजॉय किया। बहुत अच्छी आम पार्टी हो रही है और ये साल में एक दफ़ा इवेंट जो है KUJ का हमेशा होता है और गर्मियाँ जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हैं आपको ही पता है, तो गर्मियों में आम लोगों को खाना अच्छा भी लगता है और मौसम भी अब बहुत बेहतर हो गया है, तो मौसम के हवाले से बहुत लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत लोग ज़्यादा आ भी रहे हैं। देखिए, आज कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी एक तंजीम साजी का एक अगला मरहला तय किया था और इस हवाले से कारकुनों को जमा भी किया और उनकी तवाज़ो आम से की गई। आम हों और बहुत हों, ये गालिब का कहना है। मैंगो पार्टी में आम के साथ साथ सहाफ़ियों को नमकीन, लस्सी और जूसेस पिलाने का एहतमाम किया गया, जिसको सहाफ़ियों ने खूब सराहा और ऐसी तकरीबात का होना ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। कैमरा टीम के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 20।